بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام والتوفيق والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن مني وأنا من الحسين. صلوات ارشاد فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ عزا خانے کی مجلس ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار فضائل ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں مسائل. ہماری اور آپ کی گفتگو کربلا میں رشتوں کی اہمیت کے عنوان سے ہو رہی ہے، جو شاید آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جس کی بہت پہلے ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اسی طرح مجلسوں میں اس پر گفتگو کرتے کہ کربلا سے ہم اپنے رشتوں کو بہتر کرنا کیسے سیکھیں. خیر دیر آئے درست آئے. تو آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی حالات بہتر ہیں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ ہر رشتے کو لے کر آئے تھے اور ہر رشتے کو انہوں نے دین پر قربان کیا. وہ ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر محققین کے درمیان اور مومنین کے درمیان ہوتا ہے، جناب قاسم کی شادی کو لے کر کے اس پر بھی انشاءاللہ یہاں اگر موقع رہا تو گفتگو کریں گے. رشتوں میں صبر و ضبط بہت زیادہ درکار ہوتی ہے. اگر صبر و ضبط نہ ہو تو رشتے بہت ہی جلدی بگڑ جائے گا. اگر کوئی صاحب صبر و ضبط نہیں رکھتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے وہ جلدی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے. رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دور ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر سب کچھ ہے مگر صبر نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک صبر رہے گا تب تک جو ہوتا ہے رشتوں سے دوری نہیں اختیار کرے گا. رشتوں سے دوری کر رہے ہیں اس کا مطلب صبر نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ کبھی کبھی رشتوں کی دوری کی بنا جو ہے وہ کوتاہ فکری ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. رشتوں میں سوچ بڑی رکھی ہے تاکہ رشتوں میں کیا ہے بہت زیادہ دوری نہ. وہ اس لیے بھی کہ رشتہ دار دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار دوست ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اور دوسرے رشتہ دار کے درمیان دوری نہیں ہونی چاہیے. اور دنیا کے سارے لوگ اپنے رشتہ دار سے دوری بنائیں تو بنائیں، کنارہ کشی اختیار کریں تو کریں. مومنین کو کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومنین امیر المومنین کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے مومنین کہے جاتے ہیں. امیر المومنین وہ ہیں کہ جو رشتہ دار کو رشتہ دار، دوست کو دوست، اپنے دشمن کو بھی جام شربت پیش کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو بھی جام شربت پیش کر رہے ہیں، تم سے اپنے رشتہ دار کو پانی بھی نہیں پلایا جا رہا ہے. صلوات محمد اور اپنے دشمن کو جام کوثر پلا رہے ہیں، جام شربت پلا رہے ہیں، اور تم جو ہے وہ اپنے دشمن کو پانی بھی نہیں پوچھ رہے. تو اگر مومنین ہیں تو امیر المومنین کی سیرت پر چلیں تاکہ رشتہ داروں میں اختلافات اور کم از کم کچھ نہیں صحیح تو کم سے کم سلام اور دعا کے ذریعے سے برقرار رکھیں. صلہ رحمی پر بھی اس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ کم از کم سلام کے ذریعے سے رابطہ برقرار رکھیں. کچھ نہ کریے سلام رکھیں، اس سے زیادہ ہو تو اور بہتر بات ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو کم از کم سلام کے ذریعے سے رشتہ داروں سے رابطہ رہے. اس لیے کہ رشتہ دار ہی مشکل میں کام آتے ہیں. اگر ایک رشتہ دار چھوڑتا ہے تو دوسرا رشتہ ہی توڑتا ہے کہ جو مشکل میں کام آتا ہے. یہ پوری کربلا رشتوں کی ہی قربانی کے بنا پر ہے.
यहाँ रिश्ते न कुर्बान होते कुछ नहीं था। इमाम हुसैन जिनको लेकर के सब उनकी रिश्तेदारी है। अगर इमाम हुसैन भी रिश्तों से लड़ाई करते, रिश्तों में इख्तलाफात होते, उनके साथ रिश्तेदार ना आए होते, करबला कहाँ होती? करबला रिश्तेदारों की ही बना पर है। अब शायद इससे कीमती बात हम ना कह सके, पूरी करबला रिश्तेदारों की ही बना पर है। अगर रिश्तेदार न होते तो करबला न होती। तो करबला पर रोने वाले कम से कम इस बात की तरफ मुतवज्जह हैं कि रिश्तेदारों की हैसियत क्या है, रिश्तेदारों की अहमियत क्या है। ये इमाम हुसैन ने बतला दिया है कि रिश्तेदारों की अहमियत क्या है। भाई का बेटा और क्या अपना बेटा। 6 तारीख से कि जनाब अली अकबर और जनाब इमाम हुसैन के दरमियान जो मोहब्बत है, क्या जनाब कासिम और इमाम हुसैन के दरमियान उससे कुछ कम मोहब्बत है? या जितना जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन मानते हैं, चाहते हैं बाप होने की हैसियत से और वो बेटे होने की हैसियत से, क्या जनाब कासिम को जनाब अकबर से कुछ कम मानते हैं इमाम हुसैन? नहीं, बल्कि हमने तो ये देखा है कि जितना वो जनाब अकबर को रुखसत करते हुए बेचैन, उससे ज़्यादा अपने भतीजे को मक्तल में भेजते हुए परेशान होते। तो इसका मतलब यह है कि बेटे और भतीजे में फ़र्क नहीं होता है। अगर वाकई इंसान हुसैनी हो, करबला के पैगाम को समझ रहा हो, तो बेटों से ज़्यादा भतीजों को अहमियत देनी चाहिए। सलावत और पढ़िए मोहम्मद और बस हमने तमाम कर दी फजाइल में। जो पैगाम देना तो हमने पैगाम दे दिया कि बेटों से ज़्यादा भतीजों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करके और उनसे इश्क करके बता दिया, समझा दिया कि बेटों और भतीजों में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि भतीजे ज़्यादा हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे को तो मरने की इजाज़त दे देते हैं किसी तरह से, लेकिन भतीजे को मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जनाब अबू हमज़ा शुमाली जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुसूसी शागिर्द भी हैं और सहाबी भी हैं। ये बयान फरमाते हैं कि इमाम ने फरमाया कि शब आशूर मेरे बाबा ने शहीद होने वाले लोगों के नाम गिनाए, फहरिस्त गिनाई आपने, और उस फहरिस्त में आपने कासिम इब्न हसन का नाम न लिया। तो कासिम इब्न हसन ने मेरे बाबा से ये दरख्वास्त की और ये सवाल किया कि ये बताइए कि क्या जो लोग कत्ल किए जाएंगे कल, उनमें हम शामिल नहीं हैं, क्या हमें शहादत नहीं नसीब होगी? तो इमाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें शहादत मिलेगी नहीं मिलेगी। पहला सवाल इमाम ने किया कि ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि चचा जान, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मौत मेरी नज़र में क्या है और कैसी है, तो फरमाया कि सबसे मीठी चीज़ शहद होती है, लेकिन मेरी निगाह में मौत शहद से भी ज़्यादा शीरीनतर और मीठी है। ये बताइए कि मेरा नाम क्यों नहीं महदर शहादत? हुसैन आवाज़ ये मेरे लाल कासिम, तुम्हारा ही नाम नहीं बल्कि कल का दिन वो है उसमें तुम्हारे भैया अली असगर का नाम भी शामिल है। शहीद किए जाएंगे, किए जाएंगे, हाशिम के पास लड़ गए। आपका ये बात तो समझ में आती है कि मैं जाऊँगा मैदान, ये जो भी जाएगा मैदान में चल कर जाएगा, इस काबिल होगा कि जंग करेगा। आपने मेरे भैया अली असगर का नाम भी लिया है, आप हमें ये बताइए कि वो कैसे शहीद किए जाएंगे? वो तो इस काबिल भी नहीं है कि मैदान में चल के जाए, छोटा है, बच्चा है। हमारे मेरे लाल अपने हाथों पर लेके जाऊँगा, भैया के सामने पानी का मुतालबा करूँगा, बच्चे के गले पर तीर लगेगा, बच्चा शहीद होगा। कहती है कि हुसैन से जब ये सुन लिया कि महदर शहादत में नाम है, ज़रा इत्मीनान हो गया। लेकिन जब सुबह आशूर बाजार क़िताल गर्म हुआ तो कासिम हर शहीद की शहादत से पहले और हर शहीद की शहादत के बाद हुसैन की खिदमत में आते हैं, तलब पर अर्ज़ करते हैं, बच्चा मुझे कब मरने की इजाज़त दीजिएगा, बच्चा मुझे जाने दीजिए मक्तल में। इमाम हर बार ये कहते हैं, मेरे लाल मेरे भाई की निशानी हो, मेरे भाई की निशानी हो, तो कैसे मरने की इजाज़त दे दो? अभी कहता है कि मायूस हुए, आए खैमे में, रो रहे गोशे में, माँ की निगाह पड़ी, बेटे क्यों रो रहे हो? चचा मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। माँ समझा रही हैं, मेरे लाल सब्र करो, आराम करो, अगर आका मुनासिब समझें तो ज़रूर मरने की इजाज़त है। होते रावी कहता कि एकाएक बाजू पर निगाह गई, याद आया कि बाबा ने मरते मरते तावीज़ बांधा था और ये भी कहा था कि मेरे लाल
न रहूँगा। एक मौका ऐसा आएगा मेरा भाई हुसैन मैदान आला में गिर जाएगा, तन्हा रह जाएगा। ये मेरे लाल मुसीबत का वक्त होगा और वो सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। ये मेरे लाल ये तावीज़ में लिख रहा हूँ, तावीज़ में बांध रहा हूँ, इसको खोल कर पढ़ लेना और तुम मेरे भाई की मदद करना। और अगर मेरा भाई तुम्हें मैदान में न जाने दे तो मेरी इस तहरीर को दिखा देना। रावी कहता है कि तावीज़ खोला, उसमें वसीयत देखी और मैदान में जाने की बात लिखी हुई थी। रिवायत कहती है कि जनाब कासिम खुशी से उछल पड़े कि अब मरने की इजाज़त मिल जाएगी, अब चचा पर जान निसार करने का मौका मिल जाएगा। रावी कहता है कि आए हुसैन की खिदमत में आवाज़ देते हैं कि आका मुझे आप मरने की इजाज़त दीजिए या ना दीजिए, मगर इस तहरीर को ज़रूर पढ़ लीजिए, इस तावीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है। आपने भाई की तहरीर को देखा, रोने लगे, कलेजे से भतीजे को लगाया, ये मेरे लाल ये तुम वसीयत लेकर आए हो, ये अपनी मौत का परवाना लेकर के आए हो। रावी कहता है तो हुसैन कलेजे से लगा के रोते हैं, खैमे में लेके आते हैं कासिम को, आवाज़ देते हैं बहन तो संदूक लेकर के आओ, इसमें हमारे मरहूम भाई की निशानियाँ रखी हुई हैं। संदूक लाया गया, हुसैन ने संदूक को खोला, वो कबा निकाली जो इमाम हसन की कबा थी, वो अमामा निकाला जो इमाम हसन का अमामा था। अपने हाथों से अपने भतीजे को हुसैन ने अपने भाई के अमामे को पहनाया, अपने भाई की कबा को पहनाया और अमामे के दोनों सिरों को लटका दिया। लेकर के आए खैमे से बाहर, चाहते हैं कि भतीजे को रुखसत करें, लेकिन इतनी रिक्कत तारी हुई, इतनी रिक्कत तारी हुई कि इमाम और जनाब कासिम दोनों में होश होके गिर पड़े। ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी, आई मकतब के सामने, खैमे के सामने आई, भाई के सामने बैठ करके ज़ैनब ने आंसू को बहाना शुरू किया, आंसू के कतरात अरे हुसैन के चेहरे पे गिरे, आँख को खोल दी, ए बहन ज़ैनब, अरे मैं जिंदा हूँ, रो आवाज देती है, ए भैया, अरे आप बेहोश हो गए थे, कासिम बेहोश हो के गिर पड़े हैं, ए मेरे माँ जाए कासिम को मरने की रजा दीजिए। रावी कहता है कि हुसैन मरने की रजा दे रहे हैं, इस अंदाज से ये कासिम को अपने हाथों से घोड़े पे बिठाया। कुछ दूर चले थे, कासिम को रोक लिया, ये मेरे लाल रुक जाओ। जब करीब आ गए हैं तो हुसैन ने कासिम के करीबान को चाक कर दिया। किसी ने पूछा है मौला ये अमल क्यों कर रहे हैं? फरमाया ये अमल इसलिए कर रहे हैं कि दस्तूर अरब के मुताबिक जो यतीम होता है उसका गरीबान हमेशा चाक रहता है। तो इसका गरीबान इसलिए चाक कर रहा हूँ ताकि दुश्मन यतीम समझ के रहे, यतीम समझ के इस बच्चे पर अभी कहता है कि हुसैन के खैमे की जानिब से एक ऐसा नौजवान आया मक्का की जानिब, जिसकी खूबसूरती का आलम यह था जैसे चाँद का टुकड़ा हो। अजरुकुम अल्लाह, दुश्मन चाँद का टुकड़ा कह रहा है। परवाह के दिन से पूछिए कि उनकी नजर में उनका कासिम क्या होगा। कल में आए, हमारे साथ को खिताब किया है, हमारे साथ कोई है जिसे मेरे मुकाबले में देख सके। हमारे साथ ने मर्दा फौज को खिताब किया, कौन है इस बच्चे के मुकाबले में जाए, इसका काम करे। हज़रत शामी को खिताब किया, तू जा इसके मुकाबले में। वो कहता है वो बहुत बड़ा पहलवान है, मेरे बच्चे उसे कत्ल कर सकते हैं। उसके 4 बेटे थे, पहले बेटे को भेजा, जनाब कासिम के मुकाबले में आया, जनाब कासिम ने पहले बेटे को मार दिया, फिर दूसरा बेटा भेजा उसने, दूसरा बेटा भी जनाब कासिम ने कत्ल कर दिया, तीसरे बेटे को भेजा, जनाब कासिम उसके तीसरे बेटे को भी जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद चौथा बेटा आया, जनाब कासिम ने उसे भी मार दिया। रिवायत कहती है कि जब चारों बेटे 13 बरस के कासिम के हाथ से मारे गए तो हज़रत शामी पागल हो गया, तलवार लहराता हुआ आया मैदान में, जनाब कासिम से मुकाबला शुरू हुआ। रावी कहता है कि उसने जनाब कासिम के घोड़े पर हमला किया, घोड़ा जख्मी हुआ, लेकिन फिर भी जनाब कासिम 13 बरस की उम्र और शिद्दत की भूख और प्यास के बावजूद अपने आका हुसैन से दफा करते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं, तुमने क्या समझ रखा है मेरा आका तन्हा हो गया है। अरे हमला करते जा रहे हैं, हमला करते जा रहे हैं। इसी असला में एक धोखा हुआ, किसी शकी ने कहा ए कासिम, अरे तुम्हारे नारायण का तस्मा खुला हुआ है, उसे बंद कर लो। रावी कहते जैसे ही झुक करके तस्मा बंद करना चाहा, एक शकी ने सर में तलवार मारी, जख्मी हुआ।
हुए एक शक्ति नजदीक पहुंचा, चाहता सरपंच से जुदा कर ले, बस यही वो मौका था। कासिम ने चचा को पुकारा, ए चचा, अरे जल्दी आइए, जालिम का सराहने बैठा हुआ है, चाहता है सरपंच से जुदा करे। रावी कहता है, हुसैन बड़ी तेजी से कासिम की आवाज को पहुंचे। ये जो जालिम बैठा हुआ था, ये चाहता था कि सरपंच से जुदा कर दे। इसने हुसैन को देखा, हुसैन तलवार लहराते हुए इसके करीब पहुंचे। हुसैन ने हमला किया, इसके दोनों हाथ कलम हो गए। इसने फौज को मदद के लिए बुलाया, ए फौज वालों, मुझे हुसैन के हमले से बचाओ। मैं इसी असना में इधर की फौज उधर हुई, उधर की फौज इधर हुई। रावी कहता है, जिसने नाज़रीन कासिम घोड़ों की टापों से पामार हो गया। हुसैन जब पहुंचे तो कासिम पामार हो चुके, मुंह पे मुंह रख दिया, ए मेरे लाल, अरे चाचा को माफ करना, मैंने तुम्हें बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ए मेरे लाल, हम तुम्हारी मदद न कर सके। रावी कहता है, घोड़ों की टापें जैसे जैसे पड़ती थी, चाचा को पुकारते, अरे चाचा जल्दी आइए। लेकिन हुसैन जब पहुंचे, बड़ी देर हो चुकी थी, लाश टुकड़ों में बच चुकी थी। अब उतारी हुसैन ने लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया, अरे गठरी बनाकर खेलने का रुक किया।